काले जादू और तावीज़ की आड़ में ख़वातीन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने वाले जाली आमिल को लोहार ने हथौड़ों के वार करके कत्ल कर डाला। लोहार को इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों चढ़ गया था कि जान से ही मार डाला। काला जादू करने वाले जाली आमिल को कत्ल करने वाला मुल्जिम रियाज हमारे साथ मौजूद है, इससे जानते हैं। रियाज, क्या हुआ था उस रोज़ जिस रोज़ आपने कत्ल किया? ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭਣਵਈਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਣਵਈਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਮਾफ़ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਕ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬੋਝ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੋਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਵਰਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮ ਬਿਸਤਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਲਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ 2-4 ਨਾਲ ਚਪੇਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮੂ ਛੱਡ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੋਲ ਦੇਣੀ। 2 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੋਲ ਦੇਣੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵਰਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਸਰ ਜੀ 21 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਲਿਆਦਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਰੋਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਣਾ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਅੱਜ ਕੁੱਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਫਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਆਵੇ, ਲੂੰ ਕੱਢੇ ਮੇਰੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆ ਐਡਰੈਸ, ਮੈਂ ਬੇਵੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹਿਰੀਆ ਟੋਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਮੋਦਰ ਜੋਗਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। सैर से सर जी जाके मैंने कुछ थोड़े मार के तो सर जी मार देता है। भांजी की उम्र कितनी थी जब उसको भगा के लेके गया? जब भगा के गया उसकी उम्र तो 12 को 13 साल। और मकतूल की कितनी उम्र थी? 45 तो 46 साल। उसने कैसे भांजी को भगा लिया? और बहुत जी ये 2 फुका मारता सी। अल्लाह जानता बच्ची दी अखां अंधेरा आ जाता सी, उंज ही लै जाता सी। भांजी के साथ निकाह कर लिया था फिर इसने 13 साल की उम्र में? जी 13 साल की उम्र में इसने निकाह कर लिया। उसमें से एक बच्ची पैदा की है। आपकी बीवी को कैसे इसने अपने जाल में फंसाया? अपने जाल में ऐसे फंसाया, कह रहा था कि मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, हमारे साथ लगी चल। तो मेरी भांजी ने कहा मामी फियाज को ये मार देगा, चलो तू हमारे साथ आ जा। तो आके उधर चलो तू रोटियाँ कहीं करी। निकाह के उसके साथ रह रही थी? वो वैसे ही गई सी इहदे नाल। वो कितने साल रहती रही हैं? 2 साल सर जी इन्हें रही। उन्होंने की कीता, इन्हें फैक्ट्री चलाई रखा है। 2 साल फैक्ट्री जो तनख्वाह आप लैके आंदा रहा। उसको तो नहीं अपनी हवस का निशाना बनाया? किसको? आपकी बीवी को? ये सर मुझे नहीं पता, मैं क्यों झूठ मारूँ। कभी आपने खुद देखा इसे जादू करते हुए? जी जी मैंने 3-4 बार देखा है। क्या चीज़ें इस्तेमाल करता था, कैसे जादू करता था? जी इसके पास ना वो एक उल्लू के खून की शीशी थी। किसकी? उल्लू के खून का
खून की शीशी ये लेके आता था 80-90 हज़ार की। वो कह रहा था उल्लू का खून? हाँ जी, कह रहा है वो 80-90 हज़ार की मामू आती है। वो इसके पास होती थी, खफन का कपड़ा छुरियों के ऊपर 11 छुरियाँ लेता था, जिसके ऊपर वो ये दम करता था। वो कपड़ा ऊपर लपेट के उसके ऊपर खून लगाता था उल्लू का, ठीक है। बाद में उसको मरीज़ के हाथ में रख के ना तो दम करता था, ठीक है, उसे फूकें लगाता था, तो वाकई वो मरीज़ जो ना वो बदल जाता था। कितनी खवातीन रोज़ की इनके पास आती थी इलाज करवाने के लिए? 10 के 12 को 20 भी आ सकती ने सर जी। कितने पैसे लेता था? ये इनकी कम से कम फीस 20 हज़ार तो उत्ते की सर, ठीक। खवातीन को किस तरह ये हवस का निशाना बनाता था, उनसे किस तरह नाजायज़ ताल्लुकात इस्तेवार करता था? सर जी नजायज़ तलका देंगे कोई कुछ 4 लफ्ज़ ही ऐसे थे उनसे तो फूक मारता सी, अल्लाह जानता उनकी अखां बंद हो जाती सी। खवातीन राज़ी हो जाती थी इसके साथ? जी जी बिल्कुल। किस नौयत का ताल्लुक होता था उनका इनका? सर जी हम बिस्तर होंदा सी उन्होंने बच्चियां दे नाल। जब आपने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी तो बीवी क्यों उनके साथ चली गई और बगैर निकाह के उनके साथ रह रही थी? ओ जी ये बच्चे की खातर गई है, उन्हें बच्चे की खातर कुर्बानी दी थी, वो कोई गंदी नहीं सी वो जी। हाँ ये बच्चे की खातर गई है। आप अपनी बीवी को तो नहीं बचा रहे? नहीं नहीं सर कोई ऐसी गल नहीं, उन्होंने कहाँ तो बचाना है, जो मैं किया मैं हक किया बॉस। उसके कहने पे किया ना? इन्हें बच्चा मेरा मार देना ही, जो मैंने पता लगा कि इन्हें मेरा बच्चा मार देना, मैं तो मगर चढ़ गया वहाँ। आखिर दफ़ा बीवी राब्ते में थी जब मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे? नहीं जी नहीं, पुलिस कहती है कि बीवी राब्ते में थी। ये बैरिया टोनों आ रहा सी, उन्हें मैंने दसिया सी। बताया तो था, वो शामिल तो है ना कत्ल में? जी जी पहले उन्हें मैंने दसिया सी कि इन्हें बैरिया टोन जाना है तो वापस आना है जी। ये हमारे साथ मुलजिम मौजूद है, इसने अपनी बीवी के साथ मिलकर जाली आमिल को कत्ल किया। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि इनको कैसे गिरफ्तार किया। इसके कत्ल की वजह यह है कि 10 साल कबल इसने एक जो कातिल है जिसका नाम मोहम्मद रियाज़ है, इसकी सकी भांजी जो है उसको भगाया, उसके साथ शादी की, उसमें से एक बच्चा है। बाद अज़ां इसने फिर जेली तरीके से सुलह कर ली, फिर ये रियाज़ की जो बीवी उसको भगा कर ले गया, उसको बगैर निकाह के रखा। फिर ये 1-2 जगह ये शिफ्ट हो गया ताकि पता ना चले कि ये कहाँ है। मीनवाइल इसकी एक और बीवी थी, फिर एक और बीवी थी, फिर एक बीवी को इसने तलाक दी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी ख़वातीन के साथ फ़िज़िकल इलिसिट रिलेशनशिप में था और उनको ब्लैकमेल करता था। जो शबाना ज़ेर हिरासत मुलज़मा है जिसने अपने साबका खामंद के साथ मिलकर ये मर्डर प्लान किया, वो बयानी है कि बेसिकली मैं इसके साथ ये इस रिलेशनशिप में मजबूरन रह रही थी, इसलिए कि ये मेरा बेटा जो था उसको कहता था कि मैं मार दूंगा, और वो उस खतून का ये कामिल यकीन था कि अगर मैं इसके साथ ना रही तो ये मेरे वाकई बेटे को मार देगा। जो कातिल है मोहम्मद रियाज़ भी ये कहता है कि मैं सड़कों पे रुल गया, मेरी फैमिली बर्बाद होगी, मेरी जिस्म जलता था, मेरा ये वो। दौरान इंटेरोगेशन जब मैंने CDR का एनालिसिस किया तो यहाँ सो कि काफ़ी एजुकेटेड लोग जो थे उन्होंने मुझे बताया कि वो भी इससे दम करवाते थे। लेकिन एक पॉइंट पे ब्रेक हुआ कि जब इसकी बीवी क्राइम सीन के करीब जब ये वकूआ हो रहा था तो बार बार इसको कॉलिंग कर रही थी। इसका स्टेप बेटा जो है हिरासत में लिया गया। मैंने उससे पूछा कि ये नॉर्मल जो आपकी मदर हैं इसको डेली कितनी कॉलिंग करती हैं जब ये जाता है, तो उसने कहा जी एक आधी दफ़ा करती है, लेकिन उस दफ़ा उस रोज़ कॉलें बार बार हो रही थी, 5-10 मिनट के फासले पे हो रही थी। वहाँ से हमने फिर कुछ चीज़ें हिरासत में ली, वहाँ से इंटेरोगेशन हुई तो ये मुलजमान अरेस्ट हो गए। रियाज़ जो मेन कल्प्रेट है वो अरेस्ट हो गया, जो इसकी ये बीवी है ये अरेस्ट हो गई, और ये केस इंतहाई मुश्किल था, ये सॉल्व हो गया। ये जो जाली आमिल मकतूल है ये ख़वातीन के साथ कैसे ताल्लुक़ बनाता था, किस तरह उनके साथ अपने जिस्मानी ताल्लुक़ इस्तवार करता था? जी ये बेसिकली ठोकर न्याज बेग में रहता है, इसके 5-4 भाई हैं, उनसे ये अलग रहता है और अपनी मशहूरी कर ली इलाके में। और वहाँ से लोगों ने कहा कि ये दम दरूद करता है, तो औरतें चूँकि नॉर्मली इस तरह की उनकी सैकी होती है तो वो फिर इससे राब्ते में आ गई। और इसके बारे में ये भी पता चला था कि ये डेली 30, 40, 50 और लाख तक कमाता था, और टेलीफोन पे रब्ता होता था और टेलीफोन पे ये टैब बना लेता था और चला जाता था। औरतों को तो अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली ही जो सॉफ्ट होती हैं तो बंदा वर्गला लेता, लेकिन जो पीरी फ़कीरी वाला काम है, जो माइंड को कंट्रोल करना होता है, या औरतों के इमोशनल इशू होते हैं, या एक वैसे झगड़े होते हैं, तो वो शॉर्ट सलूशन चाहती हैं इन चीज़ों का।
तो उसका शॉर्ट सोल्यूशन जो है प्रैक्टिकल करने की बजाय वो एक जेली अमल या एक पीर की तलाश में होती हैं कि मेरी सास ठीक हो जाए, मेरा खामन ठीक हो जाए, बजाय कि हम अपना घर में या इधर उधर कंडक्ट ठीक करें। वो करने की बजाय हम इन जाली पीरों का सहारा लेते हैं ताकि ये हमारे मसाइल हल करें। वो मसाइल हल करने की बजाय और सत्यानाश कर देते हैं। ये हमारे साथ नवीद अंजुम अवान मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।